We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video we are going to discuss intents in Android. Okay, this is chapter number 5 of your unit number 2 from your syllabus, and I have told you earlier that I have started recording these videos from starting because while I started recording videos for this subject, actually the lockdown period was going on, and in our classroom we have already discussed 6 chapters and we have started 7 chapter. So partially 7 chapter was finished, and the remaining points of chapter number 7 up to the end of the syllabus, all chapters and practicals are discussed by me through this online teaching. Okay, I have been recording videos and uploading on YouTube continuously and sharing the link of these videos to you also. Okay, now apart from that, I have told that as the syllabus is over and the recording of the remaining portion of the syllabus is over, I have started recording videos from the starting of the syllabus, because in this way I can utilize my time, and also by sharing this video to you, you can get the revision of the earlier chapters which were discussed in the classroom. So not only the students of NJ Sonecha College, but anyone who is studying in MCA semester 4 in any college affiliated to GTU can take advantage of these videos. Okay, so I have already uploaded and shared the videos of chapter number 1 to 4 which I have recorded in past few days. Now today we are going to discuss chapter number 5, but the chapter number 5 is about intents and broadcast receivers. But let me remind you, if you are watching my videos via YouTube, then you can find practicals of intents, broadcast receivers, services, both type of services, simple service as well as intent service. You can find this video on my YouTube channel. This video are practical number 27, 28, 29, 30. Okay, if I am not wrong, just check it. Practical number 27 to 30. All these 4 or 5 practicals are all about intents and broadcast receivers as well as services. Okay, in videos में मैंने intents, broadcasting intents, receiving intents, okay, broadcast receiver, एज वेल एज सर्विसेज का कैसे यूज़ करें, ये मैंने प्रैक्टिकली उसमें समझाया है. ओके, तो ये तो क्या है कि हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं अपने सिलेबस को और चैप्टर्स को, तो ये 5वें चैप्टर में अपने समक्ष ये हमारे समक्ष पॉइंट आया है तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन पूरा प्रैक्टिकल मैंने GTU में भी अपलोड किया हुआ है, GTU के चैनल में भी, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, और YouTube पे मेरे चैनल में भी आपको वो मिल जाएगा. GTU में अगर आप GTU के चैनल्स थ्रू आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको बता दूं कि वो प्रैक्टिकल आपको कौन से क्रम पे मिलेगा. प्रैक्टिकल 9, 10, 11, 12. प्रैक्टिकल 9, 10, 11, 12 ऑन GTU वेबसाइट आपको मिलेगा. और इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम YouTube, then you can find these videos on, I have told you, in practical or the practical video number 27, 28, 29, 30. Okay,
In these videos you can find you can watch the practical demonstration of intent, all these categories like what are intents, different use of intents, implicit intents, explicit intents, broadcasting intents, receiving broadcasted intents, as well as using services, both type of services. Let's start the discussion. So we are going to discuss intents, how to create them, and how to create broadcast receivers. Intents are the most unique and important feature of Android development. We can use intents for tasks such as starting activities, services, etc. इंटेंट्स को अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे उपयोग हैं, अलग अलग बहुत सारे केसेस में, सिचुएशंस में हमें इंटेंट उपयोगी हो सकता है. जैसे कि सिंपली सबसे बेसिक टास्क है जो हम इंटेंट के द्वारा परफॉर्म करेंगे, वो है किसी भी दूसरी एक्टिविटी को पहली एक्टिविटी में से स्टार्ट करना, लॉन्च करना. ये सबसे बेसिक कार्य है इंटेंट का जो हम करना चाहेंगे. ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क है, जैसे कि हम किसी इम्प्लिसिट इंटेंट को स्टार्ट करवा सकते हैं, किसी सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करना है कुछ तो ब्रॉडकास्ट भी इंटेंट ही होता है. यूजिंग ब्रॉडकास्ट इंटेंट्स वी अनाउंस इवेंट्स सिस्टम वाइड. देखो, हमारी एप्लीकेशन में कुछ ऐसी घटना घटी है कि आपको लगता है कि इसमें डिवाइस में और एप्लीकेशन को भी दिलचस्पी हो सकती है, तो आपकी एप्लीकेशन में ये जो कुछ इंटरेस्टिंग घटना घटी है उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो. ओके, इन दैट मैनर, इन दैट केस यू विल बिकम अ ब्रॉडकास्टर. आप अपनी एप्लीकेशन से किसी इंटेंट को ब्रॉडकास्ट करोगे सेंड ब्रॉडकास्ट मेथड के द्वारा. ओके, वो हम देखेंगे. वाइल यूजिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स रिसीव इंटेंट्स अनाउंस. अगर हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनते हैं, मतलब कि सिस्टम में जहाँ पे डिवाइस में कि जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उस डिवाइस में कुछ भी ऐसी घटना घटती है, कॉमन घटना, कि जिसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंट ब्रॉडकास्ट करता है. जैसे कि बैटरी का लो होना, डिवाइस में अगर बैटरी लो होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेंट बना के ब्रॉडकास्ट करती है. कौन सा इंटेंट? बैटरी लो. ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड इंटेंट्स है कि जो सिस्टम के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ब्रॉडकास्ट होते हैं. अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन लिसन करनी है, रिसीव करनी है, तो इन दैट केस वी नीड टू बिकम अ ब्रॉडकास्ट रिसीवर. So let's introduce intents. What are these intents? Intents are used as message passing mechanisms that works both within our application and between applications. तो इंटेंट एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप मैसेज को पास कर सकते हो विद इन योर एप्लीकेशन एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द एप्लीकेशंस. मोर प्रिसाइसली वी कैन यूज इंटेंट फॉर एक्सप्लिसिटली स्टार्टिंग ए सर्विस और एक्टिविटी. देखो, उसके इंटेंट के बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि किसी एक्टिविटी को शुरू करना या किसी सर्विस को शुरू करना अपने कोड से, अपने कोड के माध्यम से. स्टार्टिंग एन एक्टिविटी और सर्विस टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा. किसी भी एक्टिविटी या सर्विस को स्टार्ट करना और इस तरह से स्टार्ट करना कि स्टार्ट होने पर उसको हम कुछ डेटा भी प्रोवाइड करें जिसके ऊपर कुछ वो कैलकुलेशन कर पाए. फॉर एग्जांपल, डाउनलोडिंग के सर्विस को स्टार्ट करते हैं और एक उसको यूआरएल देते हैं कि इस यूआरएल से आप फाइल को डाउनलोड करो. मतलब कि टास्क और करना क्या है, किसके ऊपर करना है, दोनों चीज़ देते हैं हम. दैट इज़ इंटेंट का इस तरह से भी उपयोग हो सकता है कि किसी सर्विस को हम स्टार्ट करें और किस पे उसको काम करना है, प्रोसेसिंग किस पे करना है, वो डेटा भी हम उसको सप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ ऑन पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा. जैसे कि कॉल करना है इस नंबर पे, तो जो कॉलिंग करना है वो एक प्री डिफाइंड इंटेंट है, और इस नंबर पे वो नंबर जो उसको हम देते हैं वो एक डेटा है जिसको वो कॉलिंग करने के लिए यूज़ करेगा. ठीक है ना. ब्रॉडकास्टिंग दैट एन इवेंट हैज़ अकर. जैसे ब्रॉडकास्ट करना है कुछ अपनी एप्लीकेशन से, तो भी हम इंटेंट का उपयोग कर सकते हैं. तो दिस आर द डिफरेंट केसेस, डिफरेंट situations where we can use intents. Okay,
then let's see how can we launch activity. I have told you that ये एक सबसे बेसिक कार्य, जो सबसे बेसिक टास्क जो आप करना चाहोगे या करोगे इंटेंट के माध्यम से, वो होगा किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करना, टू लॉन्च एन एक्टिविटी फ्रॉम सम अनदर एक्टिविटी। तो ऐसा करने के लिए भी हमें इंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो सबसे द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इंटेंट इज़ टू बाइंड आवर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स एंड कम्युनिकेट बिटवीन देम। हमारी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स जैसे कि एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स है, सर्विसेज भी कंपोनेंट्स है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर ऑल्सो कंपोनेंट्स। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में तालमेल साधना, उनको साथ मिला के मिलजुल के यूज़ करना, जैसे कि एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी को रन करवाना। तो ऐसे कार्यों के लिए हमें इंटेंट उपयोगी हो सकता है। और सबसे बेसिक कार्य जो ऐसा है वो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करना। सी दिस, यहाँ पे एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, माई एक्टिविटी डॉट क्लास, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें पहली आर्ग्यूमेंट पास की। देखो ये इंटेंट का कंस्ट्रक्टर है, ऐसे बहुत सारे स्वरूप है उसके अलग अलग कंस्ट्रक्टर के। हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो क्या है, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, माई एक्टिविटी डॉट क्लास। देखो पहली आर्ग्यूमेंट जो पास की है यहाँ पे वो है करंट कंटेक्स्ट, जिसमें हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो उस क्लास का उस एक्टिविटी क्लास का नाम है जिसको हम यहाँ से लॉन्च करवाना चाहते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट। ओके, तो मेथड कौन सी कॉल की हमने, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसको पास किया इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ये इंटेंट का ऑब्जेक्ट कोई खाली ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमने रेफरेंस दिया हुआ है एक्टिविटी का कि जिसको लॉन्च करना है। अगेन इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, करंट एक्टिविटी डॉट दिस, माई एक्टिविटी डॉट क्लास। मतलब कि ये हमने सपोज कि हमारी जो करंट एक्टिविटी है यहाँ पे हमने गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास किया था, यहाँ पे जिस एक्टिविटी में हम कोड लिख रहे हैं उसको पास किया, उसका रेफरेंस पास किया। दोनों तरह से पॉसिबल है। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका करंट क्लास का नाम डॉट दिस, दोनों ही केस में जो मेथड हम यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं, वो है स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इंटेंट का ऑब्जेक्ट। आफ्टर स्टार्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड, द न्यू एक्टिविटी विल बी क्रिएटेड, स्टार्टेड एंड रिज्यूम्ड, मूविंग टू द स्टॉप ऑफ दिस टेक। अब जब ये लाइन स्टार्ट एक्टिविटी मेथड कॉल होगी तो वो जो एक्टिविटी है सेकेंडरी, ओके, जिसका रेफरेंस पास किया आपने, वो लॉन्च होगी और उसकी लाइफ साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। करंट एक्टिविटी रन हो रही थी, वो स्टेक में टॉप पे थी, अब वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, और जो एक्टिविटी लॉन्च हुई है वो उसके ऊपर आ जाएगी, और उसकी लाइफ साइकिल की मेथड्स ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम कॉल होगी। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपसे जिक्र किया था कि मेरे कुछ वीडियोस जो मैंने YouTube और GTU की वेबसाइट में शेयर किए हैं इंटेंट के डेमो के, देखो यही वो कोड है कि जो उस वीडियो में मैंने अप्लाई किया है, जो उस वीडियो में मैंने डेवलप किया है, यही वो फाइल है कि जो उस वीडियो में मैंने डेवलप की है। तो आप यहाँ पे देखो ये इंटेंट डेमो की मेरी एक एक्टिविटी है, उसका ये लेआउट है जिसमें मैंने अलग अलग बटन्स रखे हैं। ओके, ये सब आप उस वीडियो में देख पाओगे जो क्रिएट किया है उसको, लॉन्च एक्टिविटी, लॉन्च सर्विस। अब ये देखिए लॉन्च एक्टिविटी का जो बटन है हमारा, उसमें एक मेथड कॉल की है हमने लॉन्च एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे देखते हैं लॉन्च एक्टिविटी, देखिए ये लॉन्च एक्टिविटी।
अभी जो कोड हमने देखा, अभी जो हमने डिस्कशन किया वही आपको बता रहा हूँ। देखो ये अपनी जो करंट एक्टिविटी है उसका नाम है इंटेंट डेमो, ठीक है। उसके अंदर बटन को क्लिक करते हैं तो लॉन्च एक्टिविटी मेथड कॉल होती है। उसमें सबसे पहले इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंटेंट, उसमें पहली आर्ग्यूमेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और सेकेंडरी एक्टिविटी जिसको हम, ये दूसरी एक्टिविटी जिसको मैं यहाँ से पहली एक्टिविटी से रन करवाना चाहता हूँ, उसका रेफरेंस और स्टार्ट एक्टिविटी। ऐसा करने पे क्या होगा, तो सेकेंडरी एक्टिविटी रन होगी, ओके। और इस तरह का इंटेंट जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। मैंने कहा था शुरू में आपसे कि दो प्रकार के इंटेंट्स होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट्स और एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। तो ये जो है वो एक्सप्लिसिट इंटेंट है। अच्छा, इम्प्लिसिट इंटेंट्स, तो इम्प्लिसिट इंटेंट्स क्या होते हैं, इसको अगर आप रन करके देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। इम्प्लिसिट इंटेंट्स, इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट लेट अस एनोनिमस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स सर्विस एक्शन रिक्वेस्ट। देखो मैंने कहा आपसे कि दो प्रकार के इंटेंट्स है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। पर ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, क्यों ऐसा नाम है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको उदाहरण दिया है उसमें इंटेंट को हम जिस एक्टिविटी को लॉन्च करवाना चाहते हैं, करने का कह रहे हैं, वो एक्टिविटी का नाम हमने उसको बता दिया। हमें पता है कि इंटेंट के पास क्या करवाना है, उससे हमें दूसरी एक्टिविटी को रन करवाना है जिसका नाम सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये हमें पता है और हम मैन्युअली उसको कह रहे हैं कि भाई इस एक्टिविटी को लॉन्च करो। तो हम बता रहे हैं उसको मैन्युअली, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया एक्सप्लिसिट इंटेंट। क्या कहा उसको, एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या कहा है कि एनोनिमस, मतलब कि हम इंटेंट को कहेंगे कि कोई एक्टिविटी लॉन्च करनी है लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। मतलब कि हम वहाँ पे टास्क मेंशन करेंगे, भाई ऐसा करो, ऐसा मतलब कि किसी एक्टिविटी को डायल करो, किसी नंबर पे डायलिंग करो, ब्राउज़र में कोई पेज डिस्प्ले करो, ओके। लेकिन उस एक्टिविटी का नाम हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि क्या करवाना है, क्या टास्क करवाना है वो हमें पता है। तो हम वहाँ पे मैन्युअली उस क्लास का नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, और हम जब उस क्लास का नाम स्पेसिफाई नहीं करते तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट्स। क्या कहते हैं उसको, इम्प्लिसिट इंटेंट्स। ये हमने
इंटेंट डेमो को रन करवाना है हमें, और सी सो सम एनोनिमस कंपोनेंट, हम ये बताएंगे कि भाई ये करना है टास्क, ऐसा कुछ करना है, वेब पेज को व्यू करवाना है, इस नंबर पे कॉलिंग करना है। लेकिन कॉलिंग करने के लिए तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, सिस्टम का जो फीचर है कॉलिंग का वही यूज़ करना है। अब सिस्टम में जो बिल्ट इन वो फीचर है, उस क्लास का नाम क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली कि कौन सा क्लास ये काम करेगा। हम उसको केवल टास्क बताएंगे कि एक्शन बताएंगे, ऐसा करो। ओके, और ऐसे बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल है, बिल्ट इन अवेलेबल है, हमें केवल उसको यूज़ करना है, इसलिए उसका नाम क्या रखा, इम्प्लिसिट इंटेंट। दैट इज वी कैन आस्क द सिस्टम टू स्टार्ट एन एक्टिविटी विदाउट नोइंग इट्स एप्लीकेशन। हमें वो एप्लीकेशन कौन सी है, वो एक्टिविटी कौन सी है, उसका नाम नहीं पता, केवल हम वो डेटा देंगे उसको कि इस डेटा के ऊपर ये काम आप करके दो मेरे को। जैसे कि देखो यहाँ पे इंटेंट आ इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, इंटेंट डॉट एक्शन डायल URI डॉट पार्स, ये नंबर दिया और कहा क्या, इसको डायल, ये एक्शन डायल एक प्री डिफाइंड इंटेंट है। राइटिंग दिस अबव कोड, सिस्टम विल रिजॉल्व द इंटेंट एंड स्टार्ट द अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। तो जैसा ही देखो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे जो पास कर रहे हैं पहली आर्ग्यूमेंट, वो हमने बनाई हुई नहीं है, सिस्टम में बिल्ट इन है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एक्शन बिल्ट इन है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये लाइन हम देंगे, ये कोड जब सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा तो सिस्टम अपने अंदर ढूंढेगा अपने SDK में कि भाई ये एक्शन से जुड़ी एप्लीकेशन कौन सी है, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन को लॉन्च करेगी, उस एक्टिविटी को लॉन्च करेगी और उसको ये डेटा भी देगी। ओके, तो ये होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। देखो किस तरह से उसका यूज़ करें इम्प्लिसिट इंटेंट्स का। टू क्रिएट ए न्यू इम्प्लिसिट इंटेंट वी नीड टू स्पेसिफाई an action to perform and optionally the URI of the data on which to perform that action। हाँ देखो, अगर आपको कोई इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करना है, उसको लॉन्च करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है कि पहले तो आपको एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस इंटेंट के ऑब्जेक्ट में पहली आर्गुमेंट आपको वो एक्शन पास करनी है, वो एक्शन के जिसके द्वारा वो इंटेंट फायर होगा। ये एक्शन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो उसको सर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढो, मिल जाएगा। और साथ ही में दूसरी आर्गुमेंट पास करनी है डेटा कि जिसके ऊपर आप इस इंटेंट को काम करवाना चाहते हो, ये एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। दो चीज़, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि पहली आर्गुमेंट एक्शन और दूसरी आर्गुमेंट डेटा। While doing so, we can also send additional data to the target activity using the put extra। ऐसा करने के वक्त आप इंटेंट को स्टार्ट करने से पहले, मतलब कि ये पहली लाइन, ये लाइन और स्टार्ट एक्टिविटी, उन दोनों के बीच में अगर कोई एडिशनल डेटा पास करना चाहते हो उस एक्टिविटी को, एनोनिमस क्लास को, एनोनिमस एक्टिविटी को, इसका नाम हमें नहीं पता, तो पुट एक्स्ट्रा के द्वारा, इंटेंट के द्वारा पुट एक्स्ट्रा मेथड कॉल करके उसमें वो डेटा आप पास कर सकते हो। यहाँ पे जो डेटा पास करोगे वो पेयर में होगा, नेम वैल्यू पेयर। द डेटा पास टू द टारगेट एक्टिविटी कैन बी रिट्रीव्ड यूजिंग गेट एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे हमने जो अभी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया वो कौन सा है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी इंटेंट डेमो एप्लीकेशन रन हुई, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो ये देखो दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो गई, और यहाँ से बैक करेंगे तो वापस आ भी गई।
तो ये हमने पहला उपयोग देखा। ओके, ये है एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एक्टिविटी में मैंने इम्प्लिसिट इंटेंट का भी कोड लिखा हुआ है। देखो ये इम्प्लिसिट इंटेंट का कोड है, ठीक है। इसमें हमने एक नंबर पास किया है 1111। तो अब जब ये इंटेंट रन होगा, कौन सा इंटेंट, एक्शन डायल, तो डायलर पैड जो है डिवाइस का डायल पैड वो ओपन हो जाएगा और उसमें ये 4 आंकड़े मतलब कि ये जो डिजिट्स है वो वहाँ पे लिखे हुए आएंगे और नीचे कॉलिंग का बटन भी होगा। अगर वो कॉलिंग का बटन क्लाइंट प्रेस करता है, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन को रन करता है वो, तो डायलिंग होगा इस नंबर पे। ये तो अभी डमी नंबर है, इसमें कोई कॉल नहीं लगेगा, ये भी एवीडी है इसलिए वैसे भी कॉल नहीं लगने वाला। See this. आ गया डायलर पे और उसमें ये 1111। उसी तरह से अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे, मैंने वीडियो में हालांकि जिक्र किया है इन सब चीज़ों का, अगर आप वो वीडियो देखोगे प्रैक्टिकल का, यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस इंटेंट्स एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ एक्शन व्यू और यहाँ पे मैं देता हूँ www.google.com। तो अगर इंटरनेट सेवा अवेलेबल है तो वो पेज भी ओपन हो जाएगा। हालांकि आज मेरा डेटा पूरा ओवर हो गया 1.5 GB, सो मे बी इफ few MBs are left then we will be able to see the output, otherwise no. Okay. Unfortunately stopped. कहाँ गया ये वाला? परमिशन चाहिए ना इंटरनेट की। एक्टिविटी नॉट फाउंड, नो एक्टिविटी फाउंड टू हैंडल इंटेंट एक्शन व्यू www। देखो अब क्या हुआ, उसको कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है जिसके द्वारा ये व्यू कर पाए इसको, इस डेटा को। हमने जो डेटा दिया उसको व्यू कर सके ऐसी कोई एक्टिविटी उसके पास है नहीं। देखो थोड़ा बहुत है अभी डेटा, इसलिए google.com ओपन हो गया। ये आपका गूगल आ गया। यहाँ पे आप लिखो अगर कुछ भी, तो ब्राउज़र की एप्लीकेशन है ये डिवाइस के ब्राउज़र की एप्लीकेशन ही यहाँ पे ओपन हुई है, तो यू कैन यूज़ इट। GTU ये अपना GTU का वेबसाइट का लिंक आ गया, ठीक है। और ये अपना GTU का वेबसाइट भी ऑनरेबल VC सर,
ठीक है। तो ये था इम्प्लिसिट इंटेंट। अब हमने आपने शायद यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब हमने HTTPS नहीं लिखा तो ओपन नहीं हुआ, लेकिन इंटरनली क्या हुआ, जब हमने ये एक्शन लिखा तो इंटरनली सिस्टम ने ढूंढा कि इस एक्शन से मैचिंग एप्लीकेशन कौन सी है, एक्टिविटी कौन सी है, लेकिन उसको मिला नहीं पहली बार, दूसरी बार मिल गया, लेकिन किया क्या, उसने ढूंढा कि इस एक्शन को मैच हो ऐसी एक्टिविटी या एप्लीकेशन कौन सी है, जिसका जिक्र इस PPT में भी अभी किया है। Resolving activity. We can also determine is there any activity to be launched on a specific intent or not. We can use the resolve activity method and pass it the package manager. हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये भी ढूंढ सकते हैं कि हमने जो अभी एक्शन लिखी है और जो डेटा उसको दिया है उससे मैच हो ऐसी कोई एक्टिविटी सिस्टम में है या नहीं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पैकेज मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर पैकेज मैनेजर, गेट पैकेज मैनेजर और कंपोनेंट नेम इज इक्वल टू रिजॉल्व एक्टिविटी PM पैकेज मैनेजर। तो रिजॉल्व एक्टिविटी से वो हमें एक्टिविटी का रेफरेंस मिलेगा। अगर नहीं मिलती ऐसी कोई एक्टिविटी तो क्या मिलेगा उसमें, नल। ओके, तो हमने यहाँ पे चेक किया कि वो अगर नल नहीं है तो ही एक्टिविटी को शुरू करना है। रिटर्निंग रिजल्ट्स। दोस्तों, रिटर्निंग रिजल्ट्स का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है।